بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد ابو ذر ہے اور فکر پاکستان چینل کی طرف سے آپ کے لیے کچھ نئی گزارشات اور نئی فکر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ بات کرنا بہت ضروری تھی اس ٹاپک پر، تو سوچا کیوں نہ سب بات کر رہے ہیں تو میں بھی کچھ اپنی گزارشات پیش کر دوں۔ کل آپ نے خبر سنی ہوگی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ کو وزارت اطلاعات کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور جناب شبلی فراز صاحب کو ان کی جگہ پر مقرر کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک نیا اور اچھا کام جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کے لیے اور عوام کے بہترین مفاد میں ہے۔ کل وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب کو بھی ریکمینڈ کیا گیا خصوصی عہدے پر۔ اب یہاں پہ ناظرین، خبر کی حد تک تو سب نے سن لیا کہ ڈاکٹر صاحبہ کو ریپلیس کر دیا، شبلی فراز صاحب آگے اور ساتھ جنرل عاصم باجوہ صاحب۔ جنرل عاصم باجوہ صاحب کا نام آپ نے پہلے سے سن رکھا ہے۔ شبلی فراز صاحب انتہائی محترم اور انتہائی جینٹل مینریبل پرسن ہے۔ کچھ بات کرنا اس لیے بھی ضروری تھا ناظرین کہ جب ملک کی دفاع کے لیے کوئی بندہ اپنی جدوجہد کر رہا ہو تو اس کے پیچھے لبیک کہنا ہمارا فرض ہے۔ پی ایم عمران خان صاحب اس میدان کارزار میں جب سے وارد ہوئے ہیں، ان کی 22-24 سال کی سٹرگل ہے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ملک پاکستان کو کسی اچھے لیڈر کی ضرورت ہے، ورنہ اس میں بہت پوٹینشل ہے، یہ آگے چاہے۔ لیکن ناظرین، آپ کو جس طرح پتا ہے کہ اس ملک کے کرتا دھرتا جن کو ہم کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ہم اسٹیبلشمنٹ کو سیدھا طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں کہ شاید وہی اس ملک کو چلاتے ہیں، ان کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ایسی بات بھی نہیں ہے، جمہوریت ہے اور سفل سپرمیسی کی طرف یہ بڑھتا ہوا پہلا قدم ہے جو آپ نے عمران خان صاحب کا کل سٹیپ دیکھا، عاصم سلیم باجوہ صاحب کو تعینات کرنے کا۔ اس میں کچھ تبدیلی میں کچھ لوگوں کے لیے ان کی پروفیشنل موت بھی چھپی ہوئی ہے، جس کو میں اپنے لفظوں میں کچھ اس طرح بیان کروں گا۔ ہم اس کے دو حصے کرتے ہیں، ایک ملکی سطح پر اور ایک انٹرنیشنل سطح پر۔ اس کے کیا تاثرات ہوں گے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، ہم اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، کیونکہ ناظرین ہمیں اپنے پاکستان کی فکر ہے۔ اس فکر میں عوام کا ایک ایک نمائندہ شامل ہے۔ جو اپنے وطن عزیز سے پیار کرتا ہے وہ اپنے ملک کی فکر بھی ضرور کرتا ہے، جو فکر نہیں کرتا وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اپنے ملک کی فکر اپنے خاندان کی فکر سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ناظرین، مدعے پہ آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ان پہ کرپشن کے چارجز ہوں یا ان کی کسی بات کرنے کے سٹائل سے کسی کو اعتراض ہو، اس سے قطع نظر کہ کیوں ان کو ریپلیس کیا گیا اور شبلی فراز صاحب کو کیوں مسند پر بٹھایا گیا، اور شبلی فراز صاحب جو تھے وہ اکیلے ہی کیوں کافی نہیں تھے، عاصم سلیم باجوہ صاحب کی تعیناتی کیوں ضروری تھی۔ کچھ حلقوں کے لیے یہ بات بہت زیادہ تشویشناک ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے فیک نیوز کا طوفان بدتمیزی اس ملک میں مچا رکھا، طوفان بدتمیزی مچا رکھی تھی، آپ اس طرح کہہ لیں اس کو۔
नाजरीन, फेक न्यूज की भरमार थी। डॉक्टर साहबा ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। पीटीवी हमारा एक वाहद कौमी नेशनल अदारा, उसको अपग्रेड करने में उनका कोई किरदार नहीं। हुकूमत की कोई बात मुदल्लल तरीके से आगे पहुंचाने का कोई उनमें टेम्परामेंट नहीं। इन सब बातों को देखते हुए इमरान खान साहब ने अपना खिलाड़ी चेंज किया और डॉक्टर साहब अब बैक टू द पवेलियन। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको बहुत ज्यादा मसाला बनाकर ये लोग पेश कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब इसलिए गए, डॉक्टर साहब इसलिए। उसको छोड़ें आप, वो बहुत छोटे इश्यूज हैं। अगर आप जब अगली बात सुनेंगे आप कहेंगे हाँ ये वाकई छोटा इशू है। आपके लिए गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहिबा यूट्यूबर्स को भी एंकर के खिलाफ बोलने से मना करती थी। ये भी कुछ उनकी इतलात पहुंची थी पीएम साहब के पास। ये सपोर्ट कर रही हैं और अपने जाती तल्लुकात बना रही हैं। बहरहाल इसको हम छोड़ते हैं और अब आते हैं इंटरनेशनल लेवल पर इसका क्या असरात होंगे। नाज़रीन, डॉक्टर आसम सलीम बाजवा, इंडिया का कोई भी चैनल अब इस वक्त आप उठाकर देख लें, यूट्यूबर उठा के देख लें, उनको जितनी तकलीफ इस तैनाती से है आपको उनकी चीखों से अंदाजा हो जाएगा कि ये तैनाती पाकिस्तान के मुफाद में कितनी जरूरी थी और बेहतरीन मुफाद में थी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का लहजा अच्छा नहीं था या उन पर करप्शन के चार्जेस थे। यह कहानी एक साइड पे रहती है। सलीम साफी साहब का आपको मैं ट्वीट बताता हूं। सबसे पहले मीडिया की चीखें, इंडिया की मीडिया की चीखें और हमारे पाकिस्तानी मीडिया में से किस किस की चीखें आसमान पर बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। नाजरीन, आपको अभी से पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपके मुल्क के साथ वफादार कौन और गद्दार कौन है, कौन दूसरी एजेंसियों के पेरोल पर काम कर रहा है और कौन पाकिस्तान के फौज के साथ और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ा है। नाजरीन, ये आपने खुद अब इसमें फैसला करना है। वीडियो मैं आपके लिए ही पेश करता हूं इसलिए कि कुछ थोड़ी सी गुजारिशात जो मेरे पास हैं वो आप तक मैं कन्वे करूं ताकि आप मुझे उसका फीडबैक दें मैं कहां गलत हूं। आसम सलीम बाजवा साहब जनरल राहील शरीफ के टर्नओवर में DGISPR रह चुके हैं। उन्हें मीडिया को हैंडल करने का, उसको मैनेज करने का, हर किस्म के मीडिया को मैनेज करने का, सोशल मीडिया, मेन एक्सट्रीम मीडिया, सबको मैनेज करने का उनको बहुत अच्छी तरह काम का पता है, किस तरह किसी के इमेज को बिल्डअप किया जाता है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत थी इस वक्त इमेज बिल्डिंग की। नाजरीन, इस बारीक नुक्ते को आपने समझना है। नवाज शरीफ साहब हमारे साबक PM, उन्होंने अपने 4 साल दौरे हुकूमत में कोई भी वजीर खारजा तैनात नहीं किया। मीडिया पर किसी भी किस्म की इंडिया के लिए कोई डिबेट नहीं होने दी। उनके लिए नरम तरीन गोशा रखा गया। आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं नाजरीन, आपको मेमोरीज में ये सब बातें मौजूद हैं। उन्होंने इंडिया के लिए खुला तरीन मैदान छोड़ दिया कि आओ पाकिस्तान के खिलाफ जो मर्जी प्रोपेगेंडा करो, दुनिया के मुल्कों को पाकिस्तान के खिलाफ कान भरो, यहां पर पाकिस्तान की वकालत करने वाला मैं कोई तयन नहीं करूंगा। मैं खुद ही वजीर खारजा हूं। मैं अगर खुद आऊंगा तो मैं को बात करूंगा, अगर मैं आऊंगा भी तो मैंने क्या बात करनी है। आपके लिए खुला मैदान है, आप बात करें। ये इंडिया के लिए उनका एक सॉफ्ट मैसेज था। अब पाकिस्तान को इमेज बिल्डिंग की जरूरत थी। इन हालात में नाजरीन, जब कोरोना सर पर सवार है और लाखों जिंदगियां दांव पर हैं, दुनिया का हर मुल्क अपने अपने रोने में पड़ा, लेकिन इंडिया की खबासत देखें। उस मुल्क ने इतनी भी रायत नहीं की कि कश्मीर का महाज उसने LOC गर्म किया हुआ है, रोजाना सीज फायर की वायलेंस करता है, यहां पर हमारे बच्चों को, बूढ़ों को और वहां के रिहायशियों को निशाना बनाता है। असल में आसम सलीम बाजवा साहब को पॉइंट करने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि अब पाकिस्तान चाहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मीडिया है उसको काउंटर किया जाए, उसके साथ एंगेज किया जाए, पाकिस्तान को पाकिस्तान की बात भी सुनाई जाए।
इंडिया के मीडिया का प्रोपेगेंडे को तोड़ आसम सलीम बाजवा साहब हैं, इस बात को आप समझ लें। मुल्की लेवल पर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुदब्बर जनाब शिबली फराज साहब और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इमेज को बिल्ड करने के लिए जनाब आसम सलीम बाजवा साहब को इसलिए तैनात किया गया। जनाब, अब आपको इस कहानी में कुछ किरदार ऐसे होंगे जो ट्विस्ट करवाते नजर आएंगे आपको। उसकी मैं 2 मिसालें पेश करूंगा नाजरीन, और उसके बाद वीडियो का इख्तिताम करूंगा। सलीम साफी साहब को आप जानते हैं, सलीम नाइन साफी साहब को। आजकल वो पीटीएम के स्पोक्स पर्सन है और नून लीग के भी स्पोक्स पर्सन है। उनके तर्जुमान है, नून लीग के तर्जुमान है। आजकल उनकी ये ड्यूटी ये बहुत ज्यादा उनके कंधों पर पड़ी हुई है, क्योंकि पार्टी तितर बितर है और मीडिया में जिंदा रहने के लिए इन जैसे लफाफों की बहुत जरूरत रहती है। सलीम साफी साहब अपना काम बड़ी सफाई के साथ कर रहे हैं, लेकिन नाजरीन जिस तरह बताया कि आवाम को शऊर आ चुका है। सलीम साफी साहब की जितनी भी साफ सुथरी पॉलिसियां हो अपनी तरफ से, अफवाज पाकिस्तान के हमेशा खिलाफ रहती हैं, आईने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रहती हैं, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ रहती हैं। उनकी जुर्रत चेक करें जरा। वो कहते हैं जनाब कि मैंने आसम सलीम बाजवा साहब को फोन किया और उनको मना किया कि आप इस गंद में ना पड़ें। इस बंदे की जुर्रत चेक करें नाजरीन। अब उनका ट्वीट पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं और फिर आप बताइएगा कि इस बंदे का क्या इलाज होना चाहिए। ये अपने आप को समझते क्या हैं? क्या ये डिसीजन मेकर हैं? ये सिर्फ एजेंट हैं, इनकी और कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सुने, मुबारकबाद के बजाय मैं आसम भाई और शिबली फराज भाई से ताजियत करता हूं। इस हुकूमत की वकालत डॉक्टर साहबा जैसे लोग ही कर सकते हैं। ट्वीट है ये दोनों इज्जतदार लोग हैं। इस सेटअप की तर्जुमानी करते हुए अपनी इज्जत बचाना नामुमकिन है। फोन पर भी दरख्वास्त की, अब भी उनसे मुल्तमिस हूं कि चार्ज लेने के बजाय माजरत कर लें। चीखें नाजरीन, चीखें। इनको आसम बाजवा साहब से क्या तकलीफ हो सकती है? वो अपनी इज्जत और अपनी गैरत के खुद जिम्मेदार हैं। अब इनको पता है कि ये एक लंबा टेन्योर आने वाला बेरोजगारी का। असल में आसम सलीम बाजवा साहब फेक न्यूज पर भी ध्यान दिलवाएंगे, मीडिया को मैनेज करेंगे, मीडिया को जो हकूक हैं उनके पैसे हैं वो रुके हुए हुकूमत से दिलवाएंगे, लेकिन इनको फेक न्यूज या किसी एजेंडे पर चलने की खुला मैदान नहीं मिलेगा इनको आसम सलीम बाजवा के होते हुए। ये याद रखिएगा। अच्छा, ये तो एक सॉफ्ट सी एक उनकी थी कि मैंने उनको कहा मेरी इज्जत ये, आप इज्जत बचाएं, लेकिन ये वो। अब इसी अगले लम्हे में एक ट्विस्ट भी आ गया साथ ही, जहां पे इन लोगों ने आपको ट्विस्ट करना है। इस पॉइंट पे मैंने आज वीडियो बनाई है। इन लोगों ने आपको ट्विस्ट करना है कि ये देखें जी, फौजी आ गए हैं, मार्शल लॉ लग गया है, इन बिटवीन ये जी इमरान खान किधर है, इमरान खान की क्या हैसियत है, वो पपिट है, ये है, ये वो। इन लोगों ने इस बात को यहां पे ट्विस्ट करना है और आप लोगों ने इसको काउंटर करना है। जब किसी बात का पता होता है फिर आप लोग उसके आगे डट के खड़े होना की पोजीशन में आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के इमेज बिल्डिंग के लिए ये बंदा बड़ा जरूरी है। इस वक्त जो इनकी बदमाशियां चल रही हैं फेक न्यूज के मतलब के रेफरेंस में देख लें या दूसरे किसी रेफरेंस एजेंडा बेस पे अपना ये खबरें वगैरह देते हैं, इन पे अगर आप देख लें तो कदगन लगने जा रही है। इन दोनों शख्सियात के होते हुए ये लोग इतना खुलकर आजादी से खेल नहीं सकेंगे। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा। दूसरा, अब तलत हुसैन एक सो कॉल्ड साफी है जिसको मैंने कल आपको तारुफ करा था, वो एजेंट है। एजेंट साहब की चीखें तो बिल्कुल आसमान पर पहुंच चुकी हैं। उनका अपना आज मैंने देखा यूट्यूब चैनल, उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ। थंबनेल जरा देखें उन्होंने क्या लगाया, उनकी चीखें, उनके तासरात, उनके अंदर के रोने, उन्हें बस आप देख ही जाएं और इनका एंजॉय करें। आपके इनके मौसम आ चुके हैं इंशाल्लाह इनको काउंटर करने के, इनको पकड़ने के। ये जो ऐसे ऐसे कहते आओ पकड़ो, आओ पकड़ो, ये इंशाल्लाह पकड़ में आने वाले हैं। तलत हुसैन साहब, फिरदौस आउट,
तरत हुसैन साहब का थंबनेल है, ये उनके यूट्यूब चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा। फिरदौस आउट, आसम इन, इमरान अभी भी वजीर आजम। ये अक्ल के अंधे हैं। अब इनको पता कि पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए ये बंदा सबसे बेस्ट है, और हम तो कर रहे हैं पाकिस्तान के एंटी काम, ये तो हमें काउंटर करेगा। इमरान खान तक कोई मतलब के ताकत नहीं रहेगी, सुपर पावर नहीं रहेगी उसकी जी, कोई सुपरमेसी नहीं रहेगी जी, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी एज ए वजीर आजम पीएम जी, और फौज ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया है। बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब नाजरीन। किस्सा मुख्तसर आपको ट्विस्ट से बचाने के लिए ये आपको अगले दिनों में बहुत ज्यादा इसके खिलाफ प्रोग्राम नजर आएंगे, नून लीग के मीडिया से एक्टिवेट होंगे और आप देखेंगे कि इनके खिलाफ बहुत ज्यादा बोला जाएगा। आपको इसलिए मुतला करना नाजरीन बहुत जरूरी था कि आपने इनके प्रोपेगेंडा में नहीं आना। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इस वक्त एलओसी पर फायरिंग कर रहा है और पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए पाकिस्तान को जहां पर वो दहशतगर्द रियासत करार देते हैं या उनका कोई नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह का कोई ऐसा कोई वहां पे केस छेड़ देता, असम सलीम बाजवा साहब सीएनएन से, बीबीसी से, इस तरह के बड़े चैनल्स के साथ एफिलेटेड होकर पाकिस्तान की आवाज वहां तक पहुंचाएंगे जो अभी तक पाकिस्तान की आवाज पहुंचाने के लिए मैदान खोला था। क्या आपके ये हामिद मीर, सलीम साफी वैसे और तलत हुसैन जैसे लोग पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे? आपका क्या ख्याल है? अब ये लोग तो हमें लड़ाने में हैं, ये लोग तो अपने अपने लफाफों के चक्कर। आपने कभी देखा इनको मुल्क की सलामती के लिए कोई बड़ी डिबेट में हिस्सा लेते हुए, किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाकर पाकिस्तान की आवाज बुलंद करते पाकिस्तान के लिए? नहीं नाजरीन, यहीं से आपको पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। अवाम समझदार हो चुकी, बाशऊर हो चुकी है। लिहाजा अवाम से एक ही इल्तमास मैं डेली करता हूं और करता रहूंगा कि अपना चैनल बनाएं, इनको काउंटर करें। आप अपनी अवाम को खुद एजुकेट कर सकते हैं, इन चोरों से बचा सकते हैं। नाजरीन आज के लिए इतना काफी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, माजरत चाहता हूं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें इस जहाद में और इंसाफियों को काउंटर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।